السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا، تمام اندیشے غیر ضروری، ایل&ٹی کمپنی کے ایم ڈی کی وضاحت۔ میٹرو ریل سے متعلق اپوزیشن کے اندیشے اور میڈیا رپورٹس مسترد، ایل&ٹی عہدیداروں کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ 17 ستمبر کو قلعے میں پرچم لہرانے کی بی جے پی کی کوشش ناکام، اجازت کے بغیر قلعے کی طرف بڑھنے والوں پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ جیلوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ، وزیر داخلہ نے کیا چنچل گڑا جیل کا معائنہ۔ اور برقی شعبے میں ملازمین کی ہڑتال پر پابندی کی مدت میں مزید 6 ماہ کی توسیع، ریاستی حکومت کے احکام۔ اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے کنٹریکٹر ایل&ٹی کے ایم ڈی وویک گیڈگل نے کہا ہے کہ پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں ہی مکمل کر لیا جائے گا۔ ایل&ٹی کے ایک مکتوب سے پیدا شدہ صورتحال کے سلسلے میں وویک گیڈگل نے چہارشنبے کو وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گیڈگل نے کہا کہ فروری سال 2014 میں ریاست کی تقسیم سے قبل لکھے گئے مکتوب کو بنیاد بنا کر پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کا کام جاری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پروجیکٹ کی تکمیل میں تلنگانہ حکومت پورا تعاون فراہم کر رہی ہے۔ گیڈگل نے بتایا کہ میٹرو ریل الاٹمنٹ کے سلسلے میں سرکاری طور پر حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں بعض مسائل ضرور آتے ہیں اور اس سلسلے میں مکتوبات کا تبادلہ عام بات ہے۔ اس دوران میٹرو ریل پروجیکٹ کے ایم ڈی این وی ایس ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور محکمہ بالادین نظم و نسق کے پرنسپل سیکرٹری سے بھی ملاقات کی۔ We are extremely sorry to see the publication of a letter written to the government of Telangana on 10th of September on some of the contentious issues which were raised by us as early as February 2014. It is sad that media chose to publish this letter in a manner which can actually damage the project. It's a very prestigious project, my dear friends. We sincerely request media friends to show restraint on such selective disclosure without proper context. There has been a great deal of cooperation from officials of Government of Telangana under the leadership of Honorable Chief Minister of Telangana. Issues which are likely to delay the project in any manner are being tracked at regular interval at the highest level in the government to make sure that the momentum is not lost. Expeditiously, as per the schedule, with the cooperation of Government of Telangana, L&T and all my media friends. اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے حیدرآباد میٹرو ریل کے کاموں میں پیش رفت کے متعلق ایل&ٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں بعض اخبارات میں شائع شدہ غیر مصدقہ خبروں کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ بعض میڈیا کے گوشوں اور اپوزیشن نے میٹرو ریل کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری کیے گئے پریس اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ کام جاری ہے اور دوسرے مرحلے کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے پروجیکٹ کے مشیر پاپا راؤ اور چیف سیکرٹری ڈاکٹر راجیو شرما دلی جا کر متعلقہ حکام سے مشاورت کریں گے۔ اس سے پہلے تلنگانہ کے تیلگو دیشم رکن اسمبلی ریونت ریڈی نے الزام لگایا تھا کہ تلنگانہ کے باوقار میٹرو ریل پروجیکٹ کو ٹی آر ایس نے گہن لگا دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کے سی آر کی ہٹ دھرمی اور ٹی آر ایس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے میٹرو ریل پروجیکٹ کی تکمیل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ریونت ریڈی نے سوال کیا کہ میٹرو ریل کے ڈیزائن اور روٹ کی تبدیلی کے لیے کے سی آر نے کیا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ تیلگو دیشم رکن اسمبلی نے الزام لگایا کہ میٹرو ریل کو الاٹ کی گئی اراضی کو بھی ٹی آر ایس حکومت واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔
उधर वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामा राव ने एल.एन.टी. की जानिब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर मकतूब रवाना किए जाने की खबर पर लाइल्मी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि मेदक के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी से अपोजिशन और मीडिया बौखला चुका है, इसलिए अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। के.टी.आर. ने कहा कि मेट्रो रेल मामले पर तफसीली जायजा लेने के बाद वज़ीर आला मौजू वक्त पर इस सिलसिले में वजाहत करेंगे। के.टी.आर. ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से ही टीआरएस के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए कहा है कि अवाम ने बीजेपी के मुंह पर तमाचा रसीद किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि लव जिहाद और फिरका वाराना सरगर्मियों के खिलाफ अवाम ने बीजेपी को सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि केसीआर की हटधर्मी की वजह से कई सनतें तेलंगाना छोड़कर जा रही है। मेट्रो रेल के कॉन्ट्रैक्टर एल.एन.टी. ने भी वज़ीर आला की धमकियों की वजह से प्रोजेक्ट छोड़ने की धमकी दे रखी है। ट्रांसको और डिस्कॉम बरखी शोबों में हड़तालों पर पाबंदी में मजीद 6 माह की तोसी की गई है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सीएमओ दफ्तर के ओहदेदारों, मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों और वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास के दौरान जुमे को होने वाली 14वीं फाइनेंस कमीशन की मीटिंग में रियासत की तरफ से पेश की जाने वाले तजावीज़ का जायजा लिया गया। जुमेरात की शाम फाइनेंस कमीशन के नुमाइंदे शहर पहुंचेंगे। गवर्नर की जानिब से जुमेरात को इशाइया का एहतमाम किया गया है, जबकि रियासती हुकूमत की तरफ से फलकनुमा पैलेस में जुमे के दिन इशाइया दिया जाएगा। वजीर दाखिला नायना नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि जेलों में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंचलगुड़ा जेल का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि चंचलगुड़ा जेल में कैदियों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसको मजीद असरी बनाने और कैदियों को रोजगार फराहम करने के सिलसिले में हुकूमत से 10 करोड़ के मुतालबे पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि जेल में कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया गया है और जेल में गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए ही मुलाकातियों और बाहर से आने वाले अफराद को रोका जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 2 अक्टूबर के दिन बाज़ कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया था, ताहम इस सिलसिले में दी गई फहरिस्त का जायजा लेना बाकी है, इसलिए जनवरी तक हुकूमत फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि 740 कैदियों की इस जेल में बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं और उनको माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। 2 अक्टोबर కాదు జనవరి అప్పటి వరకు ఏదైనా ఒక లిస్ట్ కూడా తయారు చేయమని చెప్పాను ఐజీ గారికి. ఎలిజిబుల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏంటి సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళ ఖైదీలు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏం సంగతో లిస్టు తయారు చేయమని చెప్పాను. వారికి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి పూర్తిగా సపోర్ట్ ఉంటుంది. ప్రభుత్వం సపోర్ట్ పూర్తిగా చేస్తాం. చేసి జైలు మంచిగా చేయాలి. జైల్లో అన్ని పరిణామాలు అన్ని చూసి, కానీ ఇవైతే సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ చేసేది బాగా పత్రికలలో మీడియాలో బాగా ప్రచారం జరుగుతున్నది. వాటిని కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసి ఇవన్నీ కూడా జరగకుండా చూసేదానికి తప్పకుండా మేము ఆదేశాలు ఇచ్చాం. వాళ్ళు కూడా वजीर ज़राअत पी श्रीनिवास ने कहा है कि हैदराबाद में 10 लाख लीटर की डेयरी कायम करने के सिलसिले में मरकज को तजवीज़ पेश की गई है। इसके अलावा ज़री और उससे मरबूत शोबाजात के लिए भी ग्रांट्स के लिए नुमाइंदगी की गई है। दिल्ली के दौरे के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों के कर्जों की माफ़ी से मुताल्लिक़ ज़ेली कमेटी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर पेश कर देगी। इस मौके पर इसराइल के एक वफ्द से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि बहुत जल्द वज़रा और ओहदेदार ज़री शोबे में असली टेक्नोलॉजी के जरिए काश्त करने के तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के मकसद से इसराइल का दौरा करेंगे। मुंबई में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मसरूफियात जारी है। कायद मजलिस ने मुंबई के रोज़नामा उर्दू टाइम्स के दफ्तर पहुंचकर रोज़नामा के ज़िम्मेदारों के साथ मुख्तलिफ मकामी मसाइल पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने मकामी मुसलमानों को दरपेश मसाइल से भी वाक़िफ़ियत हासिल की। अकबर ओवैसी ने मुंबई में मुख्तलिफ औलिया कराम की दरगाहों पर हाज़िरी देते हुए चादर गुल भी पेश की। मकामी मुसलमानों की तरफ से जगह जगह अकबर ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुंबई में उनके एजाज़ में एक तकरीब भी मुनक़िद की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से उन्हें तहनीत पेश की गई।
मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस तकरीब से खिताब करते हुए मजलिस के जलसों को कामयाब बनाने के लिए अवाम से अपील की। कांग्रेस के लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि केसीआर अवाम के भरोसे का इम्तिहान ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में कौन बाकी रहेगा और कौन खत्म होगा, इसका फैसला अवाम करेंगे। जाना रेड्डी ने कहा कि अक़लियतों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर अमल मुमकिन नहीं है और अक़लियतें हैं कि इसी वादे के इंतजार में केसीआर के साथ हुई हैं। उन्होंने कहा कि निचली सतह की गुफ्तगू करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वज़ीर आला जो वादे किए हैं उसे पूरा किया जाए। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि दोनों रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मामले में मरकज को जानिबदाराना रोल अदा नहीं करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मरकज किसी रियासत के बारे में कोई फैसला लेता है तो उसे पड़ोसी रियासतों के मफादात का भी ख्याल रखना चाहिए। जीवन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश बिलखुसूस सनती शोबे को बिला वक्फा बरखी सरबराही के मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर आंध्रा के सनती शोबे को बिला वक्फा बरखी सरबराह की गई तो तेलंगाना में कोई भी सनत के क़याम के लिए आगे नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को बरखी बहरान से निकालने की जिम्मेदारी भी मरकज पर आयद होती है और इस सिलसिले में वजीर आला की जिम्मेदारी है कि वो मरकज पर दबाव डालें। महकमे आसार कदीमा और पुलिस की जानिब से इजाज़त न मिलने के बावजूद बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने किले गोलकुंडा तक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीजेपी के इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। लंगर हाउस के बापू घाट के पास जमा हुए बीजेपी कायदीन जी किशन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट बंडारू तात्रिया के लक्ष्मण राजा सिंह और सी रामचंद्र रेड्डी को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर पुलिस के साथ बीजेपी कायदीन और कारकुनों की बहस व तकरार हुई और धक्का mpील के मनाजिर भी देखे गए। बीजेपी कायदीन किले गोलकुंडा की सिमत बढ़ रहे थे कि पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन्हें मुंतशिर कर दिया। 17 सितंबर के मौके पर बीजेपी कायदीन ने किले में परचम कुशाई का ऐलान किया था, ताहम अमन कानून की बरकरारी के लिए पुलिस ने रैली निकालने और परचम कुशाई की इजाजत नहीं दी। महकमे आसार कदीमा की जानिब से भी बीजेपी को किले के अहाते में परचम कुशाई की इजाजत नहीं दी गई थी। पुलिस ने बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आदिलाबाद, नलगुंडा और करीमनगर में भी बीजेपी कारकुनों ने यौम नजात मनाते हुए रैलियां निकाली। जिले कलेक्टर के दफातर पर परचम कुशाई की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साबिक रुकने पार्लियामेंट राजैया ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर का सरकारी तौर पर एहतमाम नहीं किया, जिसके लिए केसीआर अवाम से माफ़ी मांगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार से पहले केसीआर ने यौम नजात सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था और इख्तिदार में आने पर अब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। उन्होंने वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जिन तलबा की वजह से आज तेलंगाना हासिल हुआ, उन्हीं तलबा को बेइज्जत करना मुनासिब नहीं है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी ने कैंपस में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनकी तस्वीर पर अंडे और टमाटर फेंके। इस मौके पर जेएसी के सदर ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने बेरोजगार तलबा के खिलाफ जो रिमार्क्स किए हैं उनको वापस लें और सरेआम माफी मांगे। और उधर पीडीएससी तलबा ने 17 सितंबर को यौम दगा के तौर पर मनाया। आर्ट्स कॉलेज के अहाते में तलबा ने काले बैचेस लगाकर एहतजाज करते हुए यौम दगा मनाया। इस मौके पर तलबा ने कहा कि 17 सितंबर को सियासी कायदीन सियासी रंग देते हुए यौम इंज़माम को यौम नजात के तौर पर मना रहे हैं, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। रियासती आज़मीन हज का चौथा काफिला फरीज़ हज की तकमील के लिए हैदराबाद के हज हाउस से रवाना हुआ। हज कमेटी के जिम्मेदारों, रज़ाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम देने वालों और हज हाउस के कारकुनों ने नारे तकबीर की गूंज में अल्लाह के मेहमानों को वदा किया।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुगलपुरा डिवीज़न के इलाके सुल्तान शाही का दौरा करके नई रोड के कामों का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मकामी रुकन बलदिया मुकर्रम अली ने नुमाइंदगी करके 14 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली रोड के फंड्स मंजूर करवाए थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान बलदी, बरखी और आबरसानी मसाइल की यकसुई भी की गई है। इस मौके पर रुकन बलदिया मुकर्रम अली भी मौजूद थे। मुगलपुरा इलाके में आज सुल्तान शाही एरिया का दौरा किया गया था, जहाँ पर एरिया कारपोरेटर मुकर्रम अली साहब की नुमाइंदगी पर 14 लाख की लागत से एक रोड की मंजूरी, उसका काम भी चला, उसका मुआयना किया गया और कुछ इंक्रोचमेंट था, वो इंक्रोचमेंट को भी ख़त्म करने के लिए टाउन प्लानिंग के लोगों को बताया गया। खसूसन कम्युनिटी हॉल में भी कुछ वहाँ पर थोड़ा काम बचा हुआ है फ्लोरिंग का और उसकी गेट लगाने का, उसके लिए भी अहदेदारों इंजीनियर को बताया गया। और बल्दी, बरखी, आबरसानी मसाइल मुगलपुरा डिवीज़न में हल होते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े दिन के वक्फे से एक काम वहाँ पर मुकम्मल हो रहा है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर सऊदी ने इस हिसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर यह दौरा किया गया था। यहाँ पर कुछ मुकामी लोगों ने इंक्रोचमेंट की शिकायत की थी, वहाँ पर इंक्रोचमेंट को भी हटा के रोड को पूरा वाल टू वाल, जो रोड जितनी एस्टीमेट में सैंक्शन है उतनी रोड डलाने के लिए हमारी कोशिश है ताकि सुल्तान शाही के लोगों को उससे सहूलत पहुँचे। शुक्रिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा के एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए इंतजामिया और अमले के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने दवाखाने में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और इस सिलसिले में शोबे सेहत के कमिश्नर से बात करते हुए अवाम को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। रुकन असम्बली कारवान ने अपने हल्क़े रामदेवगुड़ा का दौरा किया। आला बलदी अहदेदारों के साथ पैदल दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल और शिकायतों का जायज़ा लिया। कौसर मुहिउद्दीन ने अहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल पर गाफलत न बरती जाए। बोराबंडा की मजलिसी रुकन बलदिया भानुमती ने अपने हल्क़े के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का आला बलदी अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद बोराबंडा से गाफलत बरतने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की। रुकन बलदिया के दौरे के मौके पर अवाम ने गंदगी और सफाई के नाक़िस इंतजामात की शिकायत की। बलदिया के DMC सुमा राजू ने रुकन बलदिया और अवाम को तयख़ुन दिया कि वो फौरी फंड्स जारी करते हुए काम करवाएंगे। उम्र कैद की सज़ा काटने वाले कैदियों के अफराद ख़ानदान के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। वफ़द के नुमाइंदों ने बताया कि उम्र कैद की सज़ाएँ काट रहे ऐसे कई कैदी हैं जो 14 ta 20 साल जेलों में गुजार चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त के लिए आए हैं कि वो तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें करें। अहमद पाशा कादरी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि उनकी दरख्वास्त बैरिस्टर ओवैसी तक पहुँचा दी जाएगी। महकमे बहबूदिये ख़वातीन और अतफ़ाल की ज़िलाई यूनिट की जानिब से बचपन की शादियों के ख़िलाफ़ अवाम में शऊर बेदार करने के लिए एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें काज़ियों, आंगनवाड़ी वर्कर्स और दीगर रज़ाकाराना तंजीमों के मुंतज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी जॉइंट कलेक्टर संजीवैया ने कहा कि कम उम्र की शादियों के सिलसिले में मज़ीद शऊर बेदारी की ज़रूरत है और इसके साथ साथ लड़के और लड़कियों में जो फ़र्क पैदा किया जा रहा है इसको दूर करने की भी ज़रूरत है। इस मौके पर आवाम से गुजारिश की गई कि इस तरह की कम उम्र की शादियों की इत्तला ज़िले मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को दें। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर ने इस तरह की शादियों को रोकने वालों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। डिप्टी कलेक्टर कमर्शियल टैक्स ऑफिस वाक़े एबिट्स के स्टाफ की जानिब से कश्मीर में सैलाब के मुतासरीन के लिए इमदाद रवाना की गई, जिसमें ग़िज़ाई अजनास के अलावा अद्वियात भी शामिल थीं। किंग कोठी के इलाके में एक बैग की वजह से सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद ने बैग देखकर इसकी इत्तला सुल्तान बाज़ार पुलिस को दी। पुलिस बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ मकाम वाक़या पहुँचकर जब बैग को खोला तो इसमें ज़ाफ़रानी रंग के कपड़े और रोटियों के अलावा दूसरी अशिया मिली। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद ये बैग किसी संत या साधु का होगा। इस सिलसिले में पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है।
قبا کالونی واقع شاہین نگر کے ایک مکان سے قریب 4 لاکھ روپے مالیتی اشیاء کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ کسی کام سے افراد خاندان کے ساتھ بنگلور گئے ہوئے تھے۔ گھر لوٹے تو دیکھا کہ گھر کا قفل ٹوٹا ہوا ہے اور سارا ساز و سامان بکھرا پڑا ہے، جبکہ 3.5 تولے کے طلائی زیورات، قیمتی ملبوسات کے علاوہ 75,000 روپے نقد رقم الماری سے غائب ہے۔ پہاڑی شریف پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا، تمام اندیشے غیر ضروری، L&T کمپنی کے MD کی وضاحت۔ میٹرو ریل سے متعلق اپوزیشن کے اندیشے اور میڈیا رپورٹس مسترد، L&T عہدیداروں کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات۔ 17 سپٹمبر کو قلعے میں پرچم لہرانے کی بی جے پی کی کوشش ناکام، اجازت کے بغیر قلعے کی طرف بڑھنے والوں پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ جیلوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ، وزیر داخلہ نے کیا چنچل گوڑہ جیل کا معائنہ۔ اور برقی شعبے میں ملازمین کی ہڑتال پر پابندی کی مدت میں مزید 6 ماہ کی توسیع، ریاستی حکومت کے احکام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔